Good morning, class 10th. As you all know, we have started a new chapter, that is the rise of nationalism in Europe. We have already been started unit 1. Today I will re-continuing my chapter with the topic Napoleonic Civil Code. Try to understand. In yesterday's class, we were going the impact of French Revolution. As during French Revolution, many measures, many practices, many ideas emerged by which people combined themselves, they realized their collective identity. But as soon as the French Revolution was over, Directory came into being, which was politically a weaker body. Administratively, it has many flaws. Napoleon came to power. Napoleon came to power as a military dictator. When he came to power, he introduced many reforms. बहुत सारे सुधार लाए. Actually, do remember French Revolution was done to establish democracy. But Napoleon was a king. When he came to power, he introduced many reforms, but to be remembered, monarchy returned to France and democracy was destroyed. Then how can people let it happen? For this, we have to go back in the history. We have to check about the times, about the incidents that happened during the time of Napoleon Bonaparte, in which he brought many revolutionary principles. Ultimately, जो भी वो principles changes लेकर आया, that made administration more rational, more efficient. Whichever reforms were accepted by, adopted by, regulated by, administered by Napoleon came to be known as Civil Code of 1804. क्योंकि ये जो रिफॉर्म्स नेपोलियन ने बनाए थे वो 1804 में बनाए थे और हम इसे नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं. नंबर 2, कौन कौन से रिफॉर्म्स उस समय आए थे वो हम करते हैं विद द फीचर्स, विद द you can say the add-ons. What were the reforms which were brought by Napoleonic Civil Code? मैंने NCC लिखा है बेटा. Napoleonic Civil Code आने के बाद जितने privileges थे by birth वो हटा दिए गए. Did away, आप यही वर्ड लिखेंगे. Did away मतलब vanish हो गए. नंबर 2, नेपोलियनिक सिविल कोड आने के बाद लोगों ने कहा हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहिए. देयर शुडंट बी एनी डिफरेंस बिटवीन द 3 states. All the people, whether from nobility, clergy or common masses, to be treated equal. नेपोलियन ने कहा डन कर देंगे. लोगों ने कहा नेपोलियन शुड एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, वो जो जमींदारी सिस्टम टाइप होता है. नेपोलियन सेड ओके, फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश्ड. पीपल के जगह आप पीजेंट्स करेंगे. जो किसान होते हैं, स्पेसिफिकली द पुअर पीजेंट्स, दे वर फ्रीड फ्रॉम सर्फडम. गुलामी से आजादी मिल गई. उनके ऊपर जो मैनर्स, मैनोरियल ड्यूज का मतलब है जो मैनर यानी बड़ा व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति, उसका कोई उधार करता था, सब खत्म कर दिया नेपोलियन ने. शहरों में भी सुधार आया. पहले सिर्फ ओनली फ्यू पीपल्स वर अलाउड टू ट्रेड, उसे गिल्ड कहा जाता था.
तो लोगों ने कहा गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दो, नेपोलियन ने कहा हटा दिए, राजा मैं रहूंगा, मैंने हटा दिए। 5th पॉइंट पर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन मीन्स जो थे दे इम्प्रूव्ड। The people who belong to business class, educated class, professional class, middle class, artisans, the large peasants, they found a new freedom. They get uniform laws, weights and measurements, ताकि ट्रेड करने में, मूवमेंट ऑफ गुड्स में कोई भी रुकावट ना आए। There should be freedom of movement or in trade. And also a common national currency was introduced. Everybody was very happy because जो जो लोगों को चाहिए था नेपोलियन वो देता चला गया। ये रिफॉर्म सारे इतने अच्छे थे that these were exported to the areas, to the regions or provinces which were under French control. वहां पर भी इनको रेगुलेट किया जाने लगा, जैसे कि डच रिपब्लिक जो कि स्विट्जरलैंड के ऊपर रूल करती थी, जैसे कि इटली, जैसे कि जर्मनी। सब तरफ लोग जो थे वो खुश थे और लोगों ने नेपोलियन को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया था। अब इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन जो आता है वो हमारा आता है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ नेपोलियनिक सिविल कोड। तो बेटा जब नेपोलियनिक कोड 1804 में आया, इट वॉज एक्सेप्टेड बोथ इन फ्रांस एज वेल एज इन एरियाज विच वर अंडर द नेपोलियन रूल। इनिशियली सब लोग बहुत खुश थे कि भैया ये कैसा राजा आ गया, अच्छा डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन राजा तो ऐसा आया कि मन खुश हो गया, हमारी सारी बातें मान लेता है। नेपोलियनिक सिविल कोड को बाकी के कंट्रीज में जहां जहां जेकोबिन क्लब्स थे, जैसे कि होलैंड था, स्विट्जरलैंड था, वहां पर भी अडेप्ट किया गया। 4 शहर, आप इसे BMW की तरह याद करेंगे, 4 शहर, ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान एंड वर्सो। मिलन नहीं बोलना है, मिलान, ठीक है। तो इन कंट्रीज में भी इसे एक्सेप्ट किया गया। लोगों ने कहा नेपोलियनिक सिविल कोड हार्बिंगर है, हमारे लिए आजादी लाने वाला मसीहा है। दे वर वेरी हैप्पी। लेकिन जल्द ही जो एंथुजियाज्म था, लोगों का जोश था, खुशी थी, दैट टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी, वो नफरत के अंदर बदल गई। क्यों? नेपोलियन सारी बातें करता गया, प्रिविलेजेस खत्म करने हैं कर दो, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस खत्म करने हैं कर लो, यूनिफॉर्म्स वेट इन लॉ चाहिए कर दो, करेंसी नेशनलाइज चाहिए कर दो, इक्वालिटी बिफोर लेवल लॉ चाहिए कर दो। नेपोलियन ने कहा सब कर रहा हूं, मेरी तो 3 शर्तें हैं, मेरी 3 रीजंस हैं। नंबर 1, आई कैन बी एबॉलिशिंग फ्यूडल सिस्टम, आई कैन एबॉलिश मैनोरियल ड्यूज, बट there will be increased taxation and taxation to be paid by all the members. Now there will be no freedom of speech and expression. Censorship laws were imposed on the French people. और लोगों को एक बार मना कर दो ना, बच्चों को वो टीचर बहुत अच्छा लगता है जो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा होता है, बहुत अच्छा लगता है गेम्स पीरियड जब वो दे रहा होता है, एक दिन गुस्सा कर देना चुप होकर बैठ जाओ तो वो बहुत बुरा लगने लग जाता है। तो लोगों की जब आजादी बोलने की, व्यक्त करने की ले ली गई तो लोगों को अच्छा नहीं लगा नेपोलियन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेपोलियन ऑल्सो सेड कि आई विल एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, आई डोंट माइंड, I will remove guild restrictions, I won't mind, I will give businessmen and peasants the freedom of movement or to freedom of trade or to right to property, I don't mind. But from every family there should be a person in the armies. Forced conscription into the French armies. जबरदस्ती लोगों को, आदमियों को सेना के अंदर भर्ती किया जाने लगा। When you get admitted into army, that doesn't mean कि आपकी मौत नहीं होगी। लोग यहां से नेपोलियन को पसंद नहीं करने लगे। वेलकम हुआ, एक्सेप्टेंस हुई, लेकिन हॉस्टिलिटी भी हुई। नेपोलियन ने बहुत सारे वॉर्स लड़े, जहां जहां वो जीतता गया वहां वहां वो अपनी फैमिली को सेटअप भी करता गया। फाइनली नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू
वाटरलू इंग्लैंड में जगह है, वहां की बैटल हार गया इन 1815। इसके बाद फ्रांस में क्या हुआ बेटा, वो हम यूनिट 2 से करेंगे। थैंक यू।